Hi, I'm Dr. Mridul Gokhale here. I come to chit chat with you about interesting subject called Jyotish. Jyotish is very mysterious. Some people think it is nonsense, whereas some people have full faith in it. Some people take it only for the sake of entertainment, whereas some people are blindly guided by it. But let us forget about what opinions people have. I want to share with some interesting facts with you. This is a treasure which has been given to us by our Rishi Munis. It is also called Upanga of Veda and it is a perfect science, so let us take it very seriously. I want to tell you that how it can be used very fruitfully in our day-to-day life. We meet number of people every day. We generally recognize them by their face or their voice. But what a face it is. Face reflects the horoscope of a person. There are no two people looking same. Have you seen two people looking same and you wonder the creativity of God, how he has created number of people and with no two faces looking same. Even twins don't have simple faces. It is true that some children inherit some features from their parents and grandparents, but they inherited, they have some commonality. It doesn't look exactly the same. So we have to look carefully at the face. Here I am making a bold statement that your face reflects your horoscope. Why? Do you think I should be taken seriously? Yes, I should be taken seriously. So what is horoscope? Horoscope is nothing but a chart which is drawn at the time of birth of a person. Each horoscope has 12 houses, whichever place the person is born, anywhere from Kanyakumari to Kashmir. And these 12 houses reflect some different things. The first house is called a soul of a person. सोल ऑफ अ पर्सन मीन्स दिस रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन. स्वभाव जातक का कैसे होता है, उसका रूप रंग कैसे होता है. तो फर्स्ट हाउस में हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट हाउस में क्या लिखते हैं? जो पूर्व क्षितिज में जो राशि उदित हो रही है उसको हम फर्स्ट स्थान में लिखते हैं. ऑल्सो इट इज पॉसिबल देर आर सम प्लैनेट्स ऑलरेडी इन दैट राशि, वो प्लैनेट्स भी हम फर्स्ट स्थान में लिखते हैं, फर्स्ट हाउस में लिखते हैं. Every Rashi, there are 12 Rashis, every Rashi has some ruler. So it is possible that ruler may be in the first house or it may not be in the first house. तो आपका चेहरे पे क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है? फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, कौन सा प्लैनेट है, and what is the ruler of this first house. Now on this basis we are going to do analysis. I'm going to present you some interesting facts which you will love to know and love to receive. One thing I'm going to tell you, as I'm discussing the Rashis, we have picked up some interesting examples of people who are very popular and famous and whom you know very well. So those people's faces which are picked up, which are available in public domain, and as far as possible, we are trying to take a photo when the person was of young age. Also, the horoscopes have been picked up based on the data available on internet and in public domain. So with this, we'll proceed ahead. Let us go to the first Rashi, which is Aries or Mesh Rashi. उसका स्वामी है मंगल. Mangal is called a Senapati. So as a Senapati, he is a fierce and a warrior. So these people who are having Mesh in a first house, they generally have a reddish glow on the screen. Their head is tapering, that is broad at the temple and tapering at the chin. Their neck is very straight. They might have curly hair. Their eyes are light brown and auburn, but their gaze is very fiery gaze. You will feel a sharp eyesight. And nazar भी उनकी तीखी रहती है. Eyebrows are thick and the teeth are protruding in between. So let you look at the two faces which I have selected. Let us go to the next sign, which is Vrishabh, जिसका ओनर है, रूलर ऑफ द साइन इज शुक्र. शुक्र सौंदर्य का कारक कहला जाता है. So naturally these people are very beautiful and attractive. They have a glowing skin, attractive oval or round shape, squarish forehead, eyes are very shining and eyebrows are thin and shapely. Beautiful जो लगना है ना. नोज भी बहुत शार्प और अच्छी रहती है. लिप्स अच्छे रहते हैं, दांत भी अच्छे रहते हैं. बालों का तो पूछो ही मत, बाल बहुत अच्छे लगते हैं. In short, they have a charming personality. So let us look at the two examples which we have chosen for you. Let us go to the third example of मिथुन राशि, जेमिनी. उसका स्वामी बुध है. ये ड्यूअल राशि है करके इसमें दो तरह के लोग आते हैं. सो एक कैटेगरी में उनका ओवल या राउंड हेड रहता है, ब्राउन कलर्ड आईज रहते हैं, पर इन लोगों का एक स्पेशलिटी है, आईज आर ऑलवेज कॉशियस
observing here and there. The nose is tall and straight and wide mouth, और some cases में उनके arc nose रहते हैं. Let us look at the two famous examples which I have chosen for you. Let us go to fourth राशि, which is Cancer और कर्क राशि, जिसका ओनर है चंद्र. चंद्र बहुत अच्छा रहता है, कितने कवियों के मन उन्होंने भाए हैं, तो ऐसे ये लोग भी बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं दिखने में. लार्ज और राउंड हेड इज अ स्पेशलिटी ऑफ दिस पीपल. फोरहेड तो एकदम प्रोमिनेंट रहता है. थिन चिन होती है ना, वो प्रोमिनेंट रहती है, लिटिल पुश इन फ्रंट रहती है. बाल अच्छे घने काले रहते हैं. आईज तो बहुत शाइनिंग रहती है. उनकी नजर ना थोड़ी ऑब्जर्वेंट और वॉचफुल रहती है, देखते रहते, ताकते रहते, क्या चल रहा है क्या चल रहा है. माउथ वाइड होती है, दांत व्हाइट और बिग होते हैं. ऑल्सो बोलते समय उनके दांत दिखते हैं, अच्छे अच्छे दांत. नोज स्मॉल और स्ट्रेट होती है. वाइड एंड राउंडेड नोस्ट्रिल्स रहते हैं. Now look at the two examples which I have chosen for you. Let us go to the fifth राशि called सिंह राशि और लियो राशि. इसके ओनर रवि है. रवि होने के कारण इनका चेहरे पे कॉन्फिडेंस रहता है और एक क्लास रहता है. उनका चेहरा रेडियंट और शार्प रहता है. ट्रायंगुलर भी रहता है. ब्राउनिश हेयर रहते हैं. फोरहेड एकदम प्रोमिनेंट है, दिखता है. आईज अर्बन और लाइट ब्राउन रहते हैं. नोज पॉइंटेड रहता है. बाल थोड़े से चेहरे चेहरे के माफत उनके कान थोड़े छोटे दिखते हैं, बट वैसे छोटे नहीं रहते, बट चेहरे के हिसाब से दिखते हैं. माउथ लार्ज रहता है. लेट अस हैव अ लुक एट द टू एग्जांपल्स. लेट अस गो टू द नेक्स्ट राशि कॉल्ड कन्या और वर्गो, जिसका रूलर इज बुध. बुध बुद्धि का कारक है. ये भी ड्यूअल साइन है करके दो टाइप के लोग हो सकते हैं इसमें. फेस ओवल और राउंड रहता है. माउथ चेहरे के हिसाब से छोटा रहता है. दांत भी छोटे और अच्छे रहते हैं, ब्यूटीफुल रहते हैं. फोरहेड टॉल रहता है और ऐसा लगता है थोड़ा सा आगे उसको पुश किया है. ब्लैक और ब्राउन हेयर रहते हैं. नेक स्लाइटली टिल्टेड ऑन वन साइड रहती है, रह सकती है. आईज बहुत लार्ज होते हैं. दे कैन बी ब्लैक और ब्लू इन सम केसेस. आईब्रोज आर थिक बट वेरी शेपली. लेट अस लुक एट टू फेमस एग्जांपल्स व्हिच आई हैव चोजन फॉर यू. Let us go to the next sign, seventh sign called Tula or Libra, जिसका रूलर है शुक्र. शुक्र again sign of beauty. So naturally these people are beautiful and attractive. ये लोगों की आवाज बहुत अजीब सी रहती है, एकदम कैची रहती है. चेहरा राउंड या ओवल रहता है. फोरहेड मच स्क्वेरिश रहता है. नेक शॉर्ट एंड थिक रहती है. नोज लार्ज टॉल रहता है. एंड में थोड़ा सा लिटिल बेंड रह सकता है. लिप्स आर रेड एंड थिन. व्हाइट एंड स्ट्रॉन्ग टीथ रहता है. माउथ वाइड रहता है. बाल काले घने, कभी कभी ब्राउन भी हो सकते हैं. हेयर आर थिक अबव ईयर बट फोरहेड पे थोड़े थिन हो सकते हैं. उनकी आईज आंखें बड़ी बड़ी आंखें और डीप आईज रहती है. आईब्रोज आर वेरी शेपली एंड थिक. उनकी नजर एकदम तिखी रहती है. लुक एट टू एग्जांपल्स व्हिच आई हैव चोजन फॉर यू. लेट अस गो टू नेक्स्ट राशि कॉल्ड वृश्चिक और स्कॉर्पियो. इसके स्वामी है मंगल. अगेन मंगल तिखी राशि है. नजर तो तिखी होती है ये लोगों की. उनकी आईज बहुत एक्सप्रेसिव होती है, क्लियर एंड शाइनिंग आईज होती है. आईब्रोज बहुत शेपली होते हैं. फेस थोड़ा सा कभी कभी डेंजरस लगता है. फेस उनका और हेड ब्रॉड रहता है, कभी कभी ओवल रहता है. चिन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है और डिम्पल्ड है. यू कांट फॉरगेट दैट चिन एंड फोरहेड. नोज लंबी रहती है, स्ट्रेट रहती है बट थिन हो सकती है, कभी कभी एंगुलर भी हो सकती है. दांत बहुत मजबूत रहते हैं और दिखते हैं. लेट अस हैव एग्जांपल्स ऑफ these two people. लेट अस गो टू नेक्स्ट राशि कॉल्ड धनु और सैजिटेरियस, जिसके ओनर है गुरु महाराज. गुरु इज अ called a wise man. So चेहरे पे they may be looking very intelligent depending on how strong is Guru in their horoscope. चेहरा ट्रायंगुलर ज्यादा रहता है, ओवल भी रहता है. फोरहेड बहुत लार्ज रहता है. यू कैनॉट मिस द फोरहेड. पॉइंटेड और स्किनी चिन रहती है. नेक बहुत लंबी रहती है. नोज लार्ज रहते हैं और कर्व्ड एट द एंड रहते हैं. आईज आलमंड जैसे रहती है, शाइनिंग रहती है. बाल काले और घने रहते हैं. लिप्स आर थिक एंड फुल. टीथ आर ऑल्सो लार्ज. Look at the two examples which I have chosen for you. Let us look at the next राशि मकर और कैप्रिकॉर्न, जिसका ओनर है शनि. शनि होने के कारण ये लोगों के चेहरे पर थोड़ा सीरियस लुक रहता है. हेड एंड फेस आर ओवल एंड लार्ज. कभी कभी छोटा भी रह सकता है.
उनका माउथ वाइड रहता है. All teeth are visible when they smile. Eyes are very deep and large and काले काले रहते हैं. नाक उनकी लंबी रहती है, थोड़ी सी टिल्टेड हो सकती है. नेक भी लंबी होती है. लोअर लिप लिटिल थिक होता है कंपेयर टू अपर लिप. आईब्रोज की कई कई लोगों में दोनों आईब्रोज एक दूसरे को मिली जुली रहती है और कान एकदम चेहरे को चपक के रहते हैं. देखिए दो एग्जांपल्स. लेट अस गो टू नेक्स्ट राशि कॉल्ड एक्वेरियस या कुंभ राशि. इसका भी रूलर शनि ही है. अभी इनके फीचर्स थोड़े से मेष मकर राशि से अलग है. उनका चेहरा ओवरऑल ब्यूटीफुल रहता है. फेस ओवल राउंड रहती है लेकिन अट्रैक्टिव रहती है. बाल अच्छे रहते हैं, कभी कभी अबन शेड के रहते हैं. लार्ज फोरहेड रहता है और इम्पोर्टेंट फीचर उनकी आईज बहुत शाइनिंग रहती है, ब्लैक और ब्लू. देखिए दोनों एग्जाम्पल. लुक एट केयरफुली. लेट अस गो टू लास्ट राशि, 12th राशि, मीन और पाइसिस. इसके रूलर है अगेन गुरु. लेट अस लुक एट द इम्पोर्टेंट फीचर्स. उनकी स्किन फेयर रहती है, कभी कभी ब्राउनिश रहता है. चेहरा थोड़ा बदन के हिसाब से छोटा रहता है बट फेस एकदम ब्यूटीफुल रहता है. इट कैन बी ओवल और ट्रायंगुलर फेस. फोरहेड बहुत लार्ज रहता है. इनकी स्पेशलिटी इनके चिक बोन्स वाइड रहते हैं. चिन थिन रहती है. अपर लिप लॉन्ग रहता है बट लोअर लिप इज लिटिल बिट थिकर देन द अपर लिप. हेयर बड़े सॉफ्ट ब्लैक रहते हैं, कभी कभी कर्ली भी होते हैं बट हेयर आर ओवरऑल वेरी ब्यूटीफुल. आईज लार्ज रहती है. दे कैन बी अबर्न और ब्लू कलर. Eyebrows are very shapely. Nose is thin and long and teeth are wide. Look at the two examples. कैसा लगा हमारा प्रेजेंटेशन, कैसा रहा? आपके कमेंट्स हमें जरूर भेजिए. और अगले टाइम हम विल कम विद सम मोर अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विच आर यूजफुल टू यू टेकिंग अहेड दिस टॉपिक ऑफ फेसेस. नमस्ते. थैंक यू वेरी मच.